with us. Today is the 18th January and today is the birthday of Vinod Kamli, Indian Test cricketer, born in 1972, and today is the birthday of Bhavesh Pawar, Dhanesh 11 captain in City cricket. And today India beat Pakistan in Dhaka in 1988 in the final of Asia Cup, chasing a target of 314 runs. So back to cricket now. Arkam and Waqas now change the strategy. Arbaz not open the inning. Zamir Patel famed him. Matini Sport Mapali. All the best for Matini Sport from this time firmly driven off the up. Nice looking stroke indeed, Ajay. On the up he played straight to covers and with the stroke batsman through for one. Still our link is not good as far as viewers concerned because telecast not available on YouTube. And here we watch Pratik Patil. Goes to Waqas, goes his back foot and soft pan, direct hit, and Waqas on his way. What a excellent work by Pratik Patil on his follow through. From Arkam on non-striker, and look at that close from its body, try to punch. What a stop and what a return, direct hit. And finally Waqas is out for duck. Matini Sport in trouble now. One for the loss of 1 wicket. New batsman in Arbaz Patel is the key player. With us Naveed Khan, Salim Bhai, Kamru Baba, Khwaja, Sonu, Shanwaz, Adnan, Basit, Rayan, Arshad, Papa and Shailesh Gaikwad. So play held up and remind you Matini Sports Mapoli losing a toss batting first year, 1 for the loss of 1 wicket. New batsman in Arbaz Patel. He is the key player, but in previous match he is out for duck. But he played a superb inning against Bholenath in Anjuman Trophy. Later in the inning, some of very good shots. Welcome Nurul Chaudhary and Mehboob Gauri. He is the famous man. Gauri, Form Center's proprietor and sponsor of Rajasthan Royal team. And welcome the man of the match sponsor and is the captain of Anjuman, Shehbaz Sheikh, one of the famous.
देखिए यूट्यूब पे जो लोग मुकाबला देख रहे हैं, आपको कैपिटल में डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 सिर्फ टाइप करना है, या भिवंडी क्रिकेट लाइव, दोनों में से कुछ भी टाइप कीजिए, आप तक ये टेलीकास्ट पहुंचेंगे। हमारे बीच बहुत ही मशहूर डैशिंग अमान भाभे पहुंच चुके हैं और इरशाद अंसारी ऑलराउंडर जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीजन में, दोनों का इस्तेकबाल है। बेस्ट ऑफ बाली, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। एबी प्रेजेंट थ्रिलिंग क्लाइमेक्स शुरू होने जा रहा है 17 फरवरी से, जहां पर हिंदुस्तान के 8 मशहूर टीमें खेलेंगी और वहां पे आप पिंटू पर्चा को देखेंगे, उस्मान पटेल, भरत लवार, सभी बड़े नाम, आकाश तारे, ऋषि वैद्या, बहुत बड़े नाम हैं, भरत पतला, एम्ब्रोस, कृष्णा सातपुते, सुमित डगले, अख्तर, जावेद, अरशद हुंडो, सुल्तान, साथ ही साथ अकबर। लेकिन सबसे बढ़कर यह रहेगा कि राजस्थान रॉयल जो महबूब राजस्थानी लाने वाले हैं, उसमें आप आईपीएल खिलाड़ी कामरान खान और तेज गेंदबाज नौमान को भी देखेंगे। नौमान के बारे में मुझे याद है आरके ट्रॉफी में 3 गेंदों में 3 बोल्ड किए थे और इतनी तेज गेंदें थी कि बैट्समैन अपना बल्ला भी नहीं उठा पाए थे। लेकिन उसके बाद जब वो खेलने आए तो उनका सामना हुआ था शांतानु और सुमित डगले से। मुझे पूछा था कि मुंबई का क्रिकेट भी अजीब है, इतनी तेज पर इतना जबरदस्त पुल कैसे मारते हैं सुमित डगले। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए कि सुमित डगले शॉर्ट पिच गेंदों के तो मानो दुश्मन है। ये सारा देखेंगे अल्ताफ बाली में। वो दिन मुझे लगता है अजय गरत के यहाँ पर एक बार जो आएगा वो ग्राउंड छोड़ के जाना नहीं चाहेगा, ना कोई टीम जाना चाहेंगी। खेल की शुरुआत होती भी प्रतीक, टर्न फ्रॉम वीआईपी एंड, राइट आर्म ओवर द विकेट, Boss to Arbaz tried to play it a very awkward looking stroke. Ball is traveling to gully. No signal from umpire. Yes, leg by signal. Not a very good stroke from Arbaz Patel. 1 more to total now, 2 for the loss of 1 wicket. Matin Sport losing a toss, but in Anjuman Trophy the big upset when Bholenath lost against Matin. But today is an excellent bowling so far from Pratik Patel. Is the trump card all-rounder. Goes to Khizar, Oaks does ball, remove the eye but connect very well. Fielder after it, enough time, Khizar get 2. Not a very good stroke indeed. He removed from the eyes from the balls. Arkham, not a very good stroke, but he played superb inning in before this match. 46 run made, caught it long on. Pratik Patel, right arm round wicket. Goes to Arkham. Oh, very lucky indeed. Very, very lucky indeed. Piss him in the air and off the surface. Beautiful ball. This is the ideal delivery of any format of cricket, like tennis, ODI, Test, and like T20. Pratik Patel. Goes to Arkham, swung, there is the fielder, and Arkham is dropped. I think Atish Goodwin is there. No, Atish Goodwin is there, yes, would drop a simple chance and is very, very expensive. And that marks of what a good over turn from Pratik Patel, given away only 5 runs and claim 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। बाली ट्रॉफी में बहुत कुछ रोमांच है, बहुत कुछ एक्साइटमेंट है। अगर मैं पहले ही बता दूंगा, पहले ही सब चीज़ों पे से पर्दा हटा दूंगा, तो फिर नकाब खुशाई बेमाने रह जाएंगी। एक एक चीज़ से नकाब उठेगा जैसे जैसे दिन करीब आएंगे। लेकिन एक ऐसा शो अल्ताफ बाली करने जा रहे हैं जो टेनिस क्रिकेट भिवंडी की एक नई तारीख मुरतब कर देगा।
आपने तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे उसका टाइटल देखा होगा, द थ्रिलिंग बैक इन बाली। और कितना अच्छा वीडियो इस वक्त अपलोड किया है अल्ताफ बाली और पायनियर ने। खेल की शुरुआत होती भी दूर वाले छोर से जीत को बुलाया गया है। बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था, बैकलिफ को नीचा किया, गेंद को खेला मिड ऑन पे। आज क्या हो रहा है, आतिश गोडविंदे को आगे खड़ा किया तो भी खराब फील्डिंग कर रहे। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 7 रन, और अरकम को भी नसीब का साथ मिलता हुआ। जीत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिंपल नहर में, अगरी राजा कप में भी ये गेंदबाज बहुत चमके थे। जीत बहुत खराब की रहता है कमेंटेटर्स कस, जहां उनकी तारीफ की वाइट कर बैठे। 1 रन से स्कोर 8 पे पहुंचा। जीत इस मरतबा विद टाइट स्विंग कर दिया ऑन साइड में कारपेट के सारे, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। सुमित थे वहां पर, अच्छी फील्डिंग की। केतन एक ऐसे खिलाड़ी आउटफील्ड के जो बहुत ही मशहूर है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। मतीन स्पोर्ट्स का धीमा खेल, ऐसे लग रहा है कि दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई की स्लो लोकल पकड़ ली है। नौ रन 1 विकेट कमाने के बाद, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में जब अजय रन नहीं बनते तो दबाव आ जाता है। जीत मुड़ते हुए, बहुत अच्छी गेंद आगे खींचा था वहां पे, लेकिन वाइड घोषित किया अंपायर ने। कोशिश विकेट कीपर अमर की बहुत अच्छी, ये भी एक बहुत अच्छे विकेट कीपर है अमर। जिस तरह सुजीत नाइक, कई विकेट कीपर है, जीतू गवली, रमीज रईस, उसमें एक नाम अमर का भी। बहुत शांत क्रिकेटर है अमर। अगर उनको आप गौर से देखेंगे तो वाकई में साउथ के किसी हीरो के चेहरे से उनका चेहरा मिलता जुलता। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए जीत इस मरतबा स्लॉक किया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, और आज भी अरबाज रन नहीं बना पाए, 0 पे आउट हुए अरबाज पटेल। मेरे ख्याल से केतन थी कैच के लिए। बेस्ट फील्डर अरबाज पटेल आज भी 0 का चश्मा पहन के आउट हुए, और अभी तक डेपुटी मेयर कप में उन्होंने खाता नहीं खोला है। स्लॉक किया था ऑफ स्टंप के बाहर से। जीत तो अभी नहीं कह सकते, अच्छी विकेट ली है कि मीत ना मिला रे मन का, उनको तो विकेट मिल ही गया है। आप एक तरह का क्रिकेट अजय करत नहीं खेल सकते। आप पहले मन बना के नहीं खेल सकते हैं कि मुझे ऑन साइड में खेलना है। एक वजह है कि आप पहले ही मन बनाएंगे, गेंदबाज आपके ससुराल से तो आया नहीं कि आपको मन चाहिए गेंदे देगा। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जीत। इस मरतबा धीमी गेंद, और आसिफ चिमनाट स्वीप करना चाहते थे, ऊपरी सिरा लगा था। ये गजब के प्लेयर है आसिफ चिमनाट, बहुत ही फाइटर क्रिकेटर है और अच्छे फॉर्म में भी चल रहे। अंजुमन ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। अच्छा ऑलराउंडर है आसिफ चिमनाट और एक्सपीरियंस कंपेनर है। अभी अभी उनकी शादी खाना आबादी भी हो चुकी है। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन देखना है अरकम एक जीवन दान के बाद पलट के वार करते हैं या नहीं। क्लास तो बहुत बड़ा है अरकम के पास, फॉर्म में भी बहुत अच्छे चल रहे।
इस मर्तबा फुलर लेंथ की गेंद थी, खोद कर निकाला, गोल्डविंदे का थ्रो स्टंप्स के करीब से जाता हुआ अच्छा बैकअप किया, लेकिन रन अभी भी आजादी से नहीं बन रहे जमीर पटेल फैम टीम मतीन स्पोर्ट्स के लिए। 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गेंदबाजी कर रहे हैं जीत, अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं, बैंग ऑन टारगेट। बल्लेबाजों को रोक के रखने वाली गेंदबाजी, धीमी गेंद, बहुत बढ़िया पेस परिवर्तन, समझ ही नहीं पा रहे बैट्समैन, आसिफ चिमनाट नहीं समझे थे बाई का इशारा। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13 रन मतीन स्पोर्ट्स मापोली, और विकेटों को हम देखें तो 2 विकेट। अगला मुकाबला अहमद स्पोर्ट बी और मराठा पंजाब के बीच में खेला जाना है, और आखिर में मैच ऑफ इवनिंग रहेगा अंजुमन स्पोर्ट बनाम धनेश कुक से। अंजुमन स्पोर्ट्स ने यहाँ जो भी क्रिकेट खेला है कई सालों से वो लाजवाब खेला है। अंजुमन की सिर्फ बदकिस्मती ये रहती है कि पहले ही राउंड में उनके सामने आ जाती है सुपर 6 की टीमें, लेकिन सुपर 6 की ने सुपर 1 की टीम को उन्होंने अच्छे चने चौबाए थे अंजुमन ट्रॉफी में। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अब बुलाए गए गेंदबाज प्रतीक पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, अरकम को एक जीवनदान मिला है। आसिफ चिमनाट 1 पर खेल रहे, अरबाज पटेल 0 का चश्मा पहन के आउट हुए। राजू हमसे जुड़ते हुए डीएससी के, राजू भी ये सभी के दोस्त हैं, हर टूर्नामेंट में अपनी तरफ से हमेशा यहाँ हाजिर रहते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा उतनी छोटी गेंद नहीं थी, हल्की सी शॉट थी, बहुत ज्यादा पिछले पांव पे चले गए थे, पुल किया, एलिवेशन नहीं बना, 1 रन। प्रतीक पाटिल का जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं, लेकिन तेज गेंद करते हैं और मेंटेन बहुत अच्छा करते हैं लेंथ लाइन को। अजय गरत भोलेनाथ ने कितने कप जीते हैं या फाइनल में पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन भोलेनाथ की जो टीम है वो बहुत ही परफेक्ट साइड नजर आ रही। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे खिलाड़ी है इस टीम में। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा हुक कर दिया है, बहुत खूबसूरत शॉट, पहले बाउंस पर 4 रन। शॉट जरूरत दीदी कहीं ना कहीं ऐसे एक बड़े शॉट की, और आतिश गोंडविंदे ने जो कैच छोड़ा है वो महंगा भी पड़ सकता है आउटफील्ड में अरकम का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर मतीन स्पोर्ट्स मापोली। पारी का तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। आतिश गोडविंदे बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन क्रिकेट का खेल ऐसा ही है, कभी कभी अच्छे खिलाड़ियों के हाथों से भी कैच छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं तो हर्षल गिब्स उस कैच को गिरा देते जो स्टीवा का था, वर्ल्ड कप को गिरा देते। क्रिकेट के खेल में अक्सर जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो खाने गए थे, आपकी शादी भी नहीं हुई है, मैंने वही कहा था कि आप पहले मन बना के बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि गेंदबाज आपके ससुराल से नहीं आया है। जी हाँ, मैदान में विपक्षी टीम भी होती है। इस मरतबा बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बात जरूर है, अजय गरत के बहुत कुछ डिपेंड करता है आसिफ चिमनाट पे, ये काफी अनुभवी हैं और अच्छे स्ट्रोक्स लगाने की उनमें क्षमता भी है। यहाँ से मतीन स्पोर्ट्स को 50 प्लस की तरफ तो देखना ही होगा, जिस तरह की गहराई भोलेनाथ के बल्लेबाजी में। नहीं, वो तो
देखना ही होगा, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट ही वैसा हुआ है भिवंडी टेनिस क्रिकेट में। 6 ओवर में हम आजकल देख रहे हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले ही रोचक हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले चेस करने वाली टीम आसानी से जीत जाती है। प्रतीक पाटिल आगे रखा था, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं, लगातार अपनी गेंदों में बहुत ही बदलाव करते हैं। कोई गेंद को वो हल्का सा शॉर्ट रखते हैं, कोई लेंथ गेंद करते हैं और कोई फुलर लेंथ करते हैं। इस खिलाड़ी ने काफी इंप्रेस किया था एकता कप में भी, पड़गा में। रिदम में भागते हैं। आजम पटेल ने इस वक्त मतीन स्पोर्ट और फरहान कोतकर को ऑल द बेस्ट कहा है। मापोली से प्रतीक पाटिल राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अरकम के लिए स्वंग कर दिया ऑन साइड में, और इस मर्तबा नहीं बच पाए, आउट हो गए। बहुत दूर से खींचा हुआ स्ट्रोक था। फील्डर भी दूर से आए थे निखिल। बाहर से खींचा था, अधिक एलिवेशन और अधिक अंतर भी नहीं मिल पाया। अच्छा कैच लिया निखिल ने। हमारे बीच अब 3 मेहमान पहुंचते हुए शोराब सैयद हाजी कंपाउंड, जुबैर मेमन और महबूब अली राजस्थानी। आप तीनों का हम, महबूब गौरी, हम तीनों का इस्तेकबाल करते हैं। नवीद खान हमारे बीच है, सलीम भाई हैं, कमरू बाबा है, ख्वाजा है, सोनू है, शानवाज, अदनान, बासित, रेहान, अरशद और पापा, आप सभी का इस्तेकबाल। कैसा है नए बैट्समैन, जबकि चिमनाट ने गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं। ए स्पोर्ट अर्जोली के लिए कैस पटेल और आसिफ चिमनाट। लेकिन ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर अभी भी अच्छा नहीं है। 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। महबूब गौरी को आप देख रहे हैं। तमाम मेहमानों के साथ अमीश शेख हैं, नवीद खान, सलीम भाई, कमरू बाबा, शैलेश गायकवाड, खाजा, शोराब सैयद, जुबैर मेमन, सभी का इस्तेकबाल है। वेलकम। आप देख रहे हैं क्रिकेट एंडलेस। मैचेस तो ऐसे हुए कि ऐसा लग रहा था कि इस मैच का सिरा ही नहीं, एंडलेस है, लेकिन उसकी कहानी एंडलेस बन गई। जो स्क्रिप्ट रहा था मैचेस का वो एंडलेस है। ये पीछे की रो में भी कई लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ठीक जुमा को हमारे बीच रहेंगे सुहास खामकर, बॉडी बिल्डर सलमान खान के साथ जिन्होंने काम किया, रजा मुराद, आवाज के मालिक जिन्हें कहा जाता है। और अजय करत, आपकी मालूमात के लिए कि मुगले आजम में जितना बैकग्राउंड था वो रजा मुराद के वालिद की आवाज थी, बहू बहू ऐसी आवाज। और रहेंगे हमारे साथ शक्ति कपूर। वो आपको कुछ भी कहे डायलॉग में आऊं, लेकिन वो आने वाले, यानी कि उनको आप बोलने की जरूरत नहीं है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए जीत को कंटिन्यू रखा है। बहुत अच्छी कप्तानी हो रही है। इस मरतबा लेंथ गेंद थी और पीछे हटके खेलने की कोशिश। एक बात तो है कि भोलेनाथ स्पोर्ट्स के जो गेंदबाज है वो बहुत अच्छे अभ्यास के साथ यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि गेंदबाजी बहुत बड़ा इफेक्ट रखती है उस ग्राउंड पे जहां बल्लेबाजी के लिए साजगार हो। आसिफ लगातार बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस पारी में। इस मरतबा फिर आगे रखा था। कठिनाइयों में मापोली के बैट्समैन और आसिफ भी, क्या करे, लगातार गेंदे बदल बदल के आ रही है। मौसम बदले अलग बात है, गेंदे बदल जाए तो बैट्समैन तकलीफ में रहेगा। उसके लिए स्ट्रोक भी बदलने होंगे। आपका कहना है बदलते रहना चाहिए, और जमाना उसी का ही कदर करता है जो अपने आप को ढाल देता है, बदल देता है। आपको हाँ। तो आपको ये ड्रेस बहुत पसंद होगा जो आपने पहना है, लेकिन आप इसको जिंदगी भर पहन के नहीं रख सकते, बदलते रहना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश,
एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर लगी थी गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी। जीत भी एक हरफन मौला खिलाड़ी है। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदों को रखा है अभी तक गेंदबाजों ने। जय भोलेनाथ के कैप्टन ने जो टॉस जीता था, जो फैसला लिया था फील्डिंग करने का, वो सही साबित होता हुआ अभी तक। अहमद बी के कैप्टन और मराठा पंजाब के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। कल के जो मुकाबले उनकी भी रूपरेखा थोड़ी देर में मैं आपको देता चलूंगा। जीत राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, फिर से बहुत खूबसूरत गेंद। क्या गेंदबाजी हो रही है एक ऐसे विकेट पे जहां पर बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है। इस तरह की गेंदबाजी अद्भुत, और गेंदों की लंबाई कितनी अच्छी मेंटेन की है, लाइन कितनी अच्छी है, रफ्तार कितनी अच्छी है, हर चीज पे मानो उनको नियंत्रण, कमांड है। जीत राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, ये देखिए धीमा किया, स्लॉक किया उस गेंद को, 6 रन। जैसे ही उन्होंने अपनी गेंद को बदला और बैट्समैन ने भी अपने शॉट को बदल दिया, 6 रन। बहुत अच्छी तरह से पिक किया था कि ये धीमी गति की गेंद है, मिड विकेट के ऊपर उछाल दिया 6 रनों के लिए। क्या इसका खाता खुला इस छक्के के साथ। कैस ने भी देखा कि कब तक रनों के लिए तरसते रहेंगे, कब तक सहरा में तलाश करेंगे अपने लिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने छक्का जड़ ही दिया। कैस पटेल सामना कर रहे हैं। इस मर्तबा फिर से उनको छटाया, फिर से उसी तरह की गेंद पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की जानिब कट्टी हुई। ओवर समाप्त होते हुए 4 मतीन स्पोर्ट्स कठिनाइयों में 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पे जमीर पटेल फैमिली में। अगली दौड़ में क्या होता है, बहुत ही फ्रेश लौटे मेरे साथी कमेंटेटर अजय घरत। फ्रेश क्रिकेट हो रहा है तो हमें भी फ्रेश तो रहना ही होगा। ये आप देख सकते हैं हामिद शेख साहब को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को मैनेज किया है। शैलेश गायकवाड़ जी, मापोली क्रिकेट धमाका वाकई में धमाकेदार रहा। 28 रन बने हैं 4 ओवर के बाद, 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनते हुए। ये अच्छी रफ्तार नहीं कही जा सकती जहां तक मतीन स्पोर्ट्स का सवाल है। बचे हुए 2 ओवर्स में देखना है कितने रन बना पाते हैं। अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश हो सकती है यहां से। सागर भोईर अटैक पर, उनका ये पहला ओवर है। उठाने की कोशिश, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। हासिफ तो कुछ ज्यादा ही समस्याओं में उलझे रहे इस पारी में। टाइमिंग उनकी वैसी देखने को नहीं मिली है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी डॉट बॉल्स भी खेल चुके हैं। सागर भोईर के क्या कहने, इस सत्र का सबसे अच्छा बॉलिंग विश्लेषण उनके नाम है। 2 ओवर में 15 रन देकर 6 सफलताएं पिछले मैच में वकी स्पोर्ट्स के विरुद्ध, लेकिन इस बार भटक गए। कमेंटेटर्स कर्स सिद्दीक भावे। यस, अभी मैंने भी ऐसा ही कहा था जब उन्होंने वाइट की थी। दूसरे गेंदबाज थे जीत। सागर के सामने मापोली की टीम है, कीर्तिमान भी मापोली की टीम के सामने बनाए उन्होंने इस सीजन का सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर। आगे निकले थे लेकिन रफ्तार वाली गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, बीट हुए बैट्समैन कैस। स्कोर रुका हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अमान भावे और इरशाद अंसारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है, आपका इस्तेकबाल है। तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर, बाकी सभी बाउंड्री पर। किनारा, लेकिन विकेट कीपर से गलती होती हुई कैच छूटा।
एक रन पूरा करते हुए 21। अपने आप से निराश है वहां पे अमर। कोशिश अच्छी की थी, क्योंकि जब मोटा अंदरूनी किनारा लगता है तो गेंद घूम जाती है, और जो पोजीशन में विकेट कीपर रहता है उसको बहुत जल्दी हरकत करना होती है। जी हाँ, बाहरी सिरा जब लगता है तो आसान होता है कैच लेना, लेकिन अंदरूनी सिरा जब लगता है तो उतना आसान नहीं रहता है विकेट कीपर के लिए। पेविलियन छोर से सागर भोईर ऑन साइड में उठाने की कोशिश, बीट हुए, और कितनी बार बीट हुए है इस पारी में आसिफ चमनाट। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि गेंदे बल्ले से मिलन कर रही, और मिलन कर रही तो कैच के रूप में। ये मुलाकात हो गई, डाउन द ग्राउंड खेला है, केवल 1 रन। अच्छा क्षेत्र रक्षण, प्रमोद थे वहां पर। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 32 रन। हालांकि 2 अच्छे खिलाड़ी आज टीम में नहीं, केतन और दीपक पाटिल। स्लॉक करने की कोशिश, अंदर लगी है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, डीप में खिलाड़ी, केवल 1 रन। क्षेत्र रक्षण भी बहुत बढ़िया रहा है। आउटफील्ड में भी गेंद जा रही है तो 2 रन लेने का मौका बल्लेबाजों को नहीं मिल पा रहा है। ओवर की समाप्ति 33/3। आपने फील्डरों की बात की, आपने तो दर्शकों को भी देखा था मापोली क्रिकेट धमाका में, जिन्होंने 10 कैच पकड़े थे 1500 के, और वो धमाका होने वाला है। घबराइए मत, बाली ट्रॉफी दस्तक दे रही, और मुझे नहीं लगता कि उस वक्त कोई भी दर्शक चाहेगा कि ग्राउंड से बाहर चला जाए। तो क्या कैचिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दे? एब्सोल्युटली, दर्शकों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका रहेगा वहां। ये देखिए 5 ओवर 33 रन, 3 विकेट। रनों का ब्रेकअप जरा देख लेते हैं। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 7 रन और 5वें ओवर में केवल 5 रन। तो सबसे बड़ा ओवर 8 रनों का रहा है इस पारी में। कसी हुई गेंदबाजी जय भोलेनाथ की। निखिल आया है अटैक पर, ऊपरी सिरा बल्ले का आसान सा कैच, विकेट का पतन होता हुआ। कैप्टन जय भोलेनाथ के ना ही ढील देना चाहते हैं गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक। हमारे आउट होने बीच से में पहले ताजुद्दीन चांद साहब आए हैं, हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। चांद से याद आया, रोज रातों को सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। सुना है कि बेशरम और बेहया भी है, कभी भी निकल आता है। इस बार हवा में गेंद और एक और विकेट, मिड विकेट बाउंड्री पर कोई काफी संघर्ष करना, कार निराश होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ। काफी डॉट बॉल्स खेली उन्होंने, नए बल्लेबाज लंबे ऊंचे कद के फरहान खोदकर। 8 रन बनाए थे कैस ने, और आउट होने से पहले केवल 6 रन बना पाए आसिफ। शैलेश गायकवाड़ हमारे बीच में, जो कि काफी फोकस पे रहे थे मापोली क्रिकेट धमाका में। अब केवल 4 गेंदे पारी में शेष। यही शॉट ज्यादातर देखने को मिला इस पारी में। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को ऑन साइड में खेलने की कोशिश हो रही है। गेंद की मेरिट पर नहीं खेले ऐसे दिग्बावे बल्लेबाज। और सबसे बड़ी बात है कि बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है गेंदबाजों ने, जो बल्लेबाज करना चाह रहे हैं। इस बार स्टंप्स के ऊपर से एक और डॉट बॉल। अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया है निखिल ने अपने ओवर में।
बेहतरीन गेंदबाजी। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है, थमा हुआ है। 33 रन। एक और हवाई स्ट्रोक, यानी कि ऑफ स्टंप के बाहर की हवा को लेग साइड में ढकेल रहे बैट्समैन। क्या बात है, निखिल की गेंदबाजी को हम कह सकते हैं कि कंजूस गेंदबाजी, और कंजूसी को उर्दू में बखील कहा जाता है। यानी कि निखिल बन गए बखील। क्या मेडन ओवर होगा? जी हाँ, पहला मेडन ओवर डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 का। क्या बात है, पहला मेडन ओवर निखिल के नाम, और उसमें भी विकेट मेडन। यानी 2 रिकॉर्ड अब इस ट्रॉफी के भोलेनाथ के नाम, एक तो सागर बेस्ट बॉलिंग फिगर और एक निखिल। फरहान कोतकर नॉन स्ट्राइक पे रहे, उन्हें ऑल दी बेस्ट कह रही पूरी टीम, क्योंकि एक जमाना था भोलेनाथ के बड़े ऑलराउंडर थे फरहान कोतकर, और उनसे हार्ड लक कह रही इसलिए कि उनको स्ट्राइक ही नहीं मिला। 4 गेंदें लगातार डॉट खेली अल्ताफ ने, तो पारी समाप्त हुई है। 33 रन बने हैं। मराठा पंजाब के कैप्टन और अहमद स्पोर्ट बी के कैप्टन। 34 का लक्ष्य है। टॉस होने जा रहा है और टॉस करेंगे अजय घरत। हमारे बीच में नवीद खान और शोराब सैयद साहब हैं। मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि आपको अपने पैरों को जहमत देना है और टॉस बॉक्स तक जाना है और वहां पे टॉस करना है। नवीद खान और शोराब सैयद साहब। सोहराब सैयद साहब और नवीद खान। अजय घरत, आपकी मालूमात के लिए टॉस के लिए सोहराब सैयद और नवीद खान साहब आ रहे हैं टॉस बॉक्स में। इज ओवर टू अजय घरत। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। एक महत्वपूर्ण मुकाबला, दोनों भी टीमों के कप्तान आ चुके हैं। हाजी जो कि फोकस मैन भी है इस टूर्नामेंट के, अहमद बी की कप्तानी करेंगे और यासिर शेख मराठा पंजाब की कप्तानी करेंगे। हमारे दोनों भी मेहमान हमारे बीच में आते हुए। क्या बात है, एक तरफ यंग डैशिंग तेज गेंदबाज यासिर जो इस वक्त सबसे तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक तरफ एक्सपीरियंस हाजी। वेलकम सर। हेड कहना है हाजी का, लेकिन टेल आता हुआ। थैंक यू सर। दोनों भी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। टॉस जीता है इस समय मराठा पंजाब के कैप्टन यासिर ने। यासिर, सबसे पहले ये बताइए कि आप टॉस के लिए आए हैं, क्या प्रतीक भोईर इस मैच में खेल रहे हैं या नहीं? नहीं, वो खेल रहे हैं, थोड़ा कहीं थे इसलिए नहीं आ सके, इसलिए मैं आया टॉस के लिए। क्या करना चाहेंगे? पहले फील्डिंग करेंगे। पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद 110 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने की आपकी कोशिश होगी, लेकिन आप फील्डिंग का आपका फैसला है। कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा प्रदर्शन रहा है आपके टीम का, आत्मविश्वास किस तरह का है खिलाड़ियों के बीच में? अच्छा है, अभी मतलब ये टूर्नामेंट से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे एक टीम को एक अच्छा कॉम्बिनेशन से खेलने की कोशिश करेंगे। वही टीम खेल रही है जो पिछले मैच में थी? जी हाँ, वही टीम है। टूर्नामेंट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा इवेंट है, काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम करा रहे हैं डिप्टी मेयर। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, और भी इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है टूर्नामेंट में। ऑल द बेस्ट यासिर। हाँ जी, फोकस मैन है आप टूर्नामेंट के, अब मैच भी खेलने जा रहे हैं। क्या मैसेज टूर्नामेंट के थ्रू देना चाहते हैं आप दर्शकों को? दर्शकों को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से देखें, एंजॉय करें, और सारे खिलाड़ी जो हैं पार्टिसिपेट जो किए हैं टीमें, वो अच्छे से खेल और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाए, यही मेरी उनसे गुजारिश है।
टॉस आप जीतते तो आप क्या पहले बल्लेबाजी करते? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण उसके पीछे? एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते? नहीं, असल में क्या है, हम लोग एक सब मिल के खेल रहे हैं, तो एक वो सामने बड़ी टीम है, हम लोग उनको टारगेट देना चाहते हैं, ये हिसाब से। ऐसे कौन से चेहरे हैं जो उभर कर आ सकते हैं इस मैच में आपकी टीम से? आप खुद देख लेना कि कितने चेहरे हैं जो उभर के आएंगे आपके सामने। लेकिन आज ही किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? इंशाल्लाह ओपनर आऊँगा। All the best, Haji. So news from the toss, Maratha Punjab won the toss and they will be bowling first. Back to commentary box. धन्यवाद अजय करत। लक्ष्य जो रखा है मतीन स्पोर्ट मापोली ने वो इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, सिर्फ 34 रन चाहिए और यहाँ से अगर मतीन स्पोर्ट्स को शिकस्त देना है तो गुच्छों में विकेटें लेनी होंगी। जबकि हमसे जुड़ते हुए नवाब और अहमर, नवाब स्पोर्ट्स के, नवाब स्पोर्ट्स का मुकाबला भी काफी चर्चा में रहा था। बहुत ही क्लोज इनकाउंटर में बालाजी से वो मुकाबला हारी थी और इस सीजन में मानो नवाब के पीछे बालाजी स्पोर्ट पड़ी हुई है, 3 मरतबा उनके मुकाबले हुए। सो बैक टू क्रिकेट नाउ टू अपनास ऑन द ग्राउंड, प्रमोद एंड संदेश. Sandesh Bhir is the class player. In previous match, what a start from Sandesh Bhir, taken 20 runs and in last ball he gets out LBW. Against Waki Sport Mapoli, dashing start from Sandesh against Irshad Ansari. In 5 balls he taken 20 runs. In last ball he gets out LBW. हमारे बीच में इस वक्त हाजी के भांजे मोहतरम लुकमान अंसारी साहब पहुंच चुके हैं जो नागपुर से आए। हम आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं उप महापौर कप में। हमीद शेख, अहमद सिद्दीकी, आमिर सिद्दीकी और अहमद स्पोर्ट्स की जानिब से। So back to cricket now is going to be Idris open the bowling attack and facing him Parmod. Sharad Bhoir fam team needing only 34 to victory. And there we watch Idris, left arm over the wicket. First ball snatched away over the infield, square of the offside, slowly but surely. Well cut off from Asif Chimnat, long way to go. And enough time batsman gets 2. Lovely looking try from Parmod. He off the mark with 2. Bolena 2 for no wicket, chasing a target of 34. And there we watch Idris. But this time batsman try to reverse sweep, beats him outside the off stump. 2 for no wicket. Quality bowling from Bolena's bowler like Jeet, Pratik Patil, Sagar, and what an excellent over wicket maiden from Nikhil. This time chasing dash ball, delicate played but equally stopped from the fielder. Played very late indeed. And we from his body late cut and he gets 1. 3 for no wicket. Now the little man Sandesh Bhoir is on strike. This time fine delivery, beats him outside of his stump. Moment is there. Good delivery that from Idris. Matin Sports need early breakthroughs here. Couple of wickets in mandatory power play.
This time cross batted is struck in the gap. Ball is racing all the way to the mid wicket fence for 4. With that boundary, he did not get hold of it quite well, but enough on it. And again, this time much better shot, 4 more. What a batting is the informed player Sandesh Bhuir. Back to back 2 boundaries. And at end of the first over, Matin Sport Mapoli all kind of trouble because they made only 33. The target is 34. And now they are 11 for no wicket after first over. भोलेनाथ एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी विकेट के. वडगढ़ के सम्मानीय सरपंच अरुण पाटिल का आगमन हो चुका है. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं उप महापौर चषक 2017 में. सुस्वागतम. वडगढ़ के सरपंच अरुण पाटिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है. साथ में मेरे ख्याल से जगदीश जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है. खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता कप्तान आसिफ शेख आए हैं. अब अगर मरता क्या ना करता, मरने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, करने के लिए कुछ बचा है. कुछ कर सकते हैं, गुच्छों में विकेट ले सकते हैं. बहुत अच्छी गेंद और बोल्ड आते ही उन्होंने वो काम कर दिया. गेंद के ऊपर खेले थे प्रमोद, बेल्स को ट्रिप करती हुई चली गई गेंद. बहुत खूबसूरत गेंद. गेंद की लाइन में नहीं ला पाए. कहीं ना कहीं आम गेंद थी, जिस तरह से गेंद सीधी रही. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं. आकाश, ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम मेहमानों को, और अभी अभी हमसे ज्वाइंट हुए वडगढ़ के सरपंच अरुण पाटिल जी, साथ में जगदीश और लुकमान अंसारी नागपुर से. ये उनको आप देख सकते हैं. लुकमान अंसारी. खेल की शुरुआत होती हुई आकाश बल्लेबाजी के लिए तैयार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस मर्तबा सीधे प्लेट से गेंद को उछाल दिया मिड ऑफ के सिर के ऊपर से. 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. ये आकाश भी आज बहुत ही दिलकश शॉट था. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बैकफुट पे चले गए. स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, लेकिन थोड़ा ताकत नहीं लगाई थी शॉट के पीछे. गेंद पॉइंट पे गई. 1 रन. स्कोर 16 पे पहुंचा. केवल दिशा दिखाई थी. अपने स्ट्रोक को आखिरी क्षणों में चेंज किया था वहां पर आकाश ने. अब केवल 18 रन यहां से चाहिए जीतने के लिए जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स को. एक कैचिंग पोजीशन में खिलाड़ी नजर आता हुआ. इस मरतबा बहुत खूबसूरत फ्लिक शॉट पैरों के सामने आउटफील्ड में. 1 रन. संदेश भुईर एक ऐसे प्लेयर है, आपको तो अजय पता होगा कि रात के मैचेस जब यहाँ खेले जाते थे, लेट ऑर्डर में बल्लेबाजी को आते थे, 1 या 2 सिक्स लगाते थे और वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाता था. नेचुरल टाइमर है टेनिस क्रिकेट बॉल के. एक बार फिर से गेंदबाज. इस मरतबा बहुत खराब गेंद. वाइट. दिशा इन कर बैठे वहां पर आसिफ.
कुछ करिश्मा ही करना होगा मतीन स्पोर्ट्स को यदि मैच में पूरी तरह से वापस आना है तो। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए आसिफ शेख। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ आंखों के नीचे शॉट को खेला था, 1 रन। बहुत ही मधुर ध्वनि निकला था बल्ले से जब गेंद टकराई थी। कल दोस्तों पहला मुकाबला रहेगा वॉर ऑफ टाइटंस, महिंद्रा स्पोर्ट बनाम बालाजी स्पोर्ट। कल शुरुआत ही ऐसे मैच से होने जा रही है। बहुत अच्छी गेंद, बैकलिप को नीचा किया, ड्राइव किया, काउंट द विकेट, 1 रन। ये देखिए थ्रो मिड विकेट पे आता हुआ 2 रन पूरे के बैट्समैन ने। एक तरफ सूरज तो एक तरफ गैसुद्दीन शेख। 1 शॉट का इशारा है अंपायर का, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। दूसरा मुकाबला कल दोस्तों आप देखेंगे अहमद स्पोर्ट और युवती का स्पोर्ट, ये भी एक बड़ा मैच। कल तीसरा मुकाबला जो रहेगा वो सारा इंडियंस और मयूरेश स्पोर्ट्स के बीच में। यूट्यूब पे अगर मैच आप देख रहे हैं तो डेपोटी मेयर ट्रॉफी 2017 लाइव डालेगा। डेपोटी मेयर DEPUTY। आप सही बोले हो, मैं ये तुमको बोलने वाला था, स्पेलिंग कोई भी आ नहीं रही हो। थोड़ा मुश्किल ये वर्ड रहता है। इस मरतबा गेंद को निकाल दिया है, रिवर्स शॉट, 4 रन। पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे, लेकिन फाइन लेग ऊपर था, थर्ड मैन ऊपर था, उसका लाभ मिलता हुआ। काफी दूर से खेले हैं, कवर में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन आसानी से। ओवर थ्रो बैकअप करने के लिए फील्डर काफी दूर है, 1 और रन बनता हुआ। ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिया है मैच को मतीन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने। रन संख्या 26, 1 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 8 रन चाहिए जय भोलेनाथ को। इस मरतबा आसमानी टोला, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। निराशा साफ तौर पर झलकती हुई आसिफ के चेहरे पर। आकाश तो गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि फरहान कोत्तर ने भी अपने हाथ कमर पे रख दिए। कप्तान को तो अपने हाथ सर पे रखना चाहिए, जिस तरह का आज परफॉर्मेंस रहा है मतीन स्पोर्ट्स का। 2 रन चाहिए, चारों शाने चीत कर दिया। इस मरतबा गेंद जाएंगी पीछे, फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग लेग पर, 1 रन बनता हुआ। 1 रन चाहिए केवल शरद भोईर फैम टीम को मुकाबले को जीतने के लिए। शानदार प्रदर्शन, खेल के तीनों भी विभागों में आगे रही है जय भोलेनाथ। गेंद को खेलते हुए ऑन साइड में और इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन शरद भोईर, सागर भोईर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भोलेनाथ स्पोर्ट्स द कैप्टन संदेश भोईर
Hard luck Matin Sport, hard luck Fran Kotkar, hard luck Asif Sheikh and Zamir Patel. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, एक ही नाम विकेट मेडन डाला जिन्होंने उप महापौर कप में, हुआ है निखिल. निखिल इज द मैन ऑफ द मैच. Congratulations Sharad Bhuir, congratulations Jai Bholenath Sports, congratulations the captain of Jai Bholenath Sport, Sandesh Bhuir, and hard luck Matin Sport. आइए मैन ऑफ द मैच निखिल, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की. नुसरत बोबड़े के हाथों से हम रिस्ट वॉच दे रहे हैं. नुसरत बोबड़े, नुसरत बोबड़े रिस्ट वॉच देते हुए सरपंच अरुण पाटिल, वडगढ़ के सम्मानीय सरपंच अरुण पाटिल जी के हाथों से हम आपको ये ट्रॉफी दे रहे हैं कि आपने अच्छी गेंदबाजी की. जगदीश जी हमारे बीच में मौजूद हैं. जगदीश जी के हाथों से हम आपको ये मिठाई का बॉक्स उन तक देना है. मिठाई का